स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। Just a moment. तुमको बोला क्या होगा? ओके, ये तुम्हारा वन का क्वेश्चन। सेकंड क्या हो सकता है? So this time we will be reading that electromagnetic induction. Based on that, here we are going to read uh, self-inductance, mutual inductance. Okay. Uh, there we have studied only regarding the magnetic circuit. That is, we have studied flux density, H. What is H? Magnetic field strength. Then we have studied I, intensity of magnetization. Okay. Then we have studied, what is that? S. What is S? reluctance, Reluctance. Then we have formed a formula. Flux is equal to, what is that? Ni by क्या? L, L into mu zero, उसको हमने वो flux is equal to Ni by reluctance. Yes. Okay. Then we have calculated in a series magnetic circuit. We have calculated the total. Okay, total क्या? Flux. flux, How we have to solve the problem, that is very important in that regard. So just a minute, my screen is not getting stuck somewhere. अब आ गया. So now I am going to share the screen for the people. Okay, entire screen is shared. Now your screen is visible to you people. yes sir, Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is the thing. What is that we are going to do? Electromagnetic induction. Means electro means by using electricity and in the magnetic circuit how it induction happens. Right? How induction happens. So we'll be reading here relation between these two and production of EMF, current, Faraday's laws of electromagnetic induction, then direction of EMF and current, Lenz's law, induced EMF, self-inductance, mutual inductance, and coefficient of coupling. Okay, these are the things which is there in your syllabus and we'll be starting. So let's start. So what I told you yesterday, this is electromagnetic induction. What happens? Electromagnetic induction. Whenever current flows in a conductor, okay, what happens? Whenever current flows a conductor, a magnetic field is. Tell me. Anyone? Magnetic field induced. एक मैग्नेटिक फील्ड इज इमीडिएटली ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस. जब तुम लोग करंट भेजोगे कंडक्टर में, सडनली एक मैग्नेटिक फील्ड तुम लोग के वो कंडक्टर के आसपास आ जाएगा. राइट? ठीक है ना? तो वो फील्ड क्या करता है? दिस फिनोमेना वो क्या करेगा? दिस फिनोमेना इज हियर बाय एन ईएमएफ. हेंस वो क्या करेगा? दूसरा अगर हम वहां पे एक सर्किट लेके आएंगे तो वहां पे वो उसको इंड्यूस हो जाएगा, उसमें चला जाएगा. So this is known as, look at it here. This phenomena hereby an induced EMF, hence current force in the circuit is induced in any conductor which cut across the magnetic field. मतलब अगर मैं यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ क्या हो रहा है. अगर मेरा एक सर्किट है ये वाला, वहां पे मैं करंट भेज रहा हूँ, ठीक है ना? नीचे भेजे, ऊपर नहीं, ऊपर भेजे. आज क्या होगा? यहाँ पे अगर करंट में भेज रहा हूँ तो क्या होगा? यहाँ पे फ्लक्स आ जाएगा कि नहीं? और अगर तुम लोग यहाँ पे कोई भी कॉइल यहाँ पे लेके आओगे, सो व्हाट विल हैपन?
there will be a induced EMF, and due to this induced EMF there is a current flowing in the circuit. ठीक है? हाँ, this is the phenomena is known as your electromagnetic induction, right? Huh? This is your electromagnetic induction, and look at it. What happens here? Here I have got a, what is that? Hmm? Here I have got a Magnet. Paramagnetic. magnet, and it is your north pole and south pole, and this is your permanent magnet. Okay, this gives your flux, and whenever I am getting a conductor here near to that, so what will happen? There will be a production of EMF, and whenever EMF, whenever there is a voltage, there will be some flow of current. So that current passes through, known as your, what is your electromagnetic induction. यहीं पर located. This also we can make it. हमने पढ़ा था कि नहीं, how the power generation occurs? Power generation कैसे होता है? कैसे होता है? बहुत बार हमने बोला तुमने. I have told you many times. किसी भी मैग्नेट हाँ. घुमाने से या मैग्नेट के किसी अंदर भी कॉइल घुमाने से मैं- या Yes, it is the simple principle. Whenever a coil rotates in a magnetic field, it cuts a magnetic flux. There will be a production of करंट EMF in the circuit. Current. When there will be a production of EMF, there will be production flow of current. That's it. If the principle happens. Okay. So this is based on that. This law is derived. This law is based on this induction. Faraday's gave two law. ठीक है, फाराडे इंडक्शन के ऊपर दो लॉ दिए हैं. ठीक है ना? तो पहला लॉ व्हाट ही सेड, द फर्स्ट लॉ ही सेड व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a circuit, means whenever magnetic flux linked with a circuit changes, an EMF always induced, right? So look at it, there is a circuit, I have a circuit here, and it has a magnetic flux, and whenever I am getting a coil near to that and I am changing the coil, what happens? Whenever I am changing the coil, what happens? The flux link will be changed कि नहीं? Yes, sir. अगर मैं ये दूसरा कॉइल को घुमाऊंगा तो ये जो फ्लक्स है क्या होगा? कट होगा. तो फ्लक्स कट होने से एन ईएमएफ इज ऑलवेज इंड्यूस्ड. अंडरस्टूड? तो उसको दूसरे में हम भी अलग भी कह सकते हैं. वेन एवर ए कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट हैपेंस? What happens? An EMF EMF is induced. EMF induced. in the conductor. That is first law of Faraday's first law of electromagnetic induction. The information regarding the EMF, production of EMF. Faraday's first law gives the production of how the induced EMF produced, it gives that. And how it is produced? It is very simple. It says that whenever a conductor cuts magnetic flux and induced and EMF induced in the circuit. पहला लॉ खत्म. ठीक है? हाँ, दूसरा लॉ क्या बोला है? State. Look at it, the second law. What he says? Second law gives the magnitude. कितना induced EMF होगा? Right? Second law gives the magnitude of that induced EMF. So what he says? The magnitude of the induced EMF is equal to क्या? रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. Rate of change of flux. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. मीन्स जितना फ्लक्स चेंज होगा द इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड उतना. सिंपल. Understood? तो कोई तुम लोग को, if somebody will ask you what is the Faraday's first law, propose the Faraday's first law gives the information regarding the induced EMF, and second law gives the what? Second law gives the Rate of change of सर मैग्नीट्यूड ऑफ Magnitude. magnitude. Second law gives the magnitude. First law gives the information regarding induced EMF, and that says that whenever a conductor cuts magnetic flux, there will be an produce of induced EMF. And second law gives that the magnitude of induced EMF कितना होगा? The magnitude of the induced EMF is equal to rate of change of flux फ्लक्स linkage. लिंक टाइम के साथ कितना फ्लक्स लिंकेज हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ
ठीक है। मान लो इनिशियली फ्लक्स लिंकेज है क्या, n इंटू फाइव, मतलब आहे वे n नंबर ऑफ, मेरा एक n कॉइल है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, देखो ये वाला मेरा कॉइल नंबर n है, ठीक है। हाँ, कॉइल नंबर n है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स मैं दे रहा हूँ फाइव, तो यहाँ पे जो पहला लिंक हो रहा है, पहला लिंक हो रहा है क्या, फाइव वन इंटू एन। तो द इनिशियल लिंकेज इज एन फाइव वन, एंड फाइनल लिंकेज, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाऊंगा तो फाइनल लिंकेज क्या होगा, एन, एन तो वही है, नंबर ऑफ टर्न्स इज सेम, हाँ, then n into 5. Now the changes is, what is the change? Change is your n into क्या, final value means n phi 2 minus n phi 1 divided by T. t, time divided by t, and this is your known as your induced EMF. So here what happened, what we have done, we have taken n as a common, so it is your, what is that, it is your phi 2 minus phi 1 into n by t. So this expression I can write it like this, it is e is equal to d of n d phi by, what is that, DT. dt. And d phi by dt is known as your rate of change of, what is this, Flux link. this is your rate of change of flux. Suppose somebody will ask you what is your e is equal to minus n d phi by DT. dt, ये माइनस साइन क्यों है, एनीवन, Induced EMF. इंड्यूस्ड माइनस साइन क्यों है, विच लॉ, आई हैव टोल्ड यू, अरे अपोज करेगा, Lenz law. हाँ, लाइन लेंस लॉ, लेंस लॉ कहता है, लुक एट इट, द माइनस साइन इज ड्यू टू इट opposes the very cause, means well, which is this, due to Lenz's law, the EMF produced is will oppose the voltage which we have given initially. So that's why when it is opposing, that's why we have put it a what sign, minus, Negative sign. माइनस negative, right, means it is in opposite direction. मान लो मेरा ये वोल्टेज हमने दिया क्या, V, यहाँ पे वोल्टेज हमने भी दिया, तो ये कहाँ पे आएगा, ऐसे अपोजिशन नीचे अब नीचे, नीचे आएगा, इसीलिए इसको हमने माइनस ही दे दिया। सो डायरेक्टली it is going to oppose the very cause is E, and the which is the voltage which is given, voltage is given V, this is the thing. तो तुम लोग बता सकते हो, फैराडेस लॉ भी कह सकते हो, फैराडेस लॉ पहला लॉ दे रहा है तुम लोग का इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेकंड लॉ दे रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वो मैग्नीट्यूड कितना होगा, that is equal to E is equal to minus माइनस N means number of And turns d phi by dt. d phi by dt, and d phi by dt is nothing but rate of change of Rate of change of flux. flux. खत्म, ओके, राइट, दिस इज द थिंग, यहीं पे वही दिया है, एक प्रॉब्लम भी वही दिया है, देखो एक टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया, यहाँ पे देख लेते हैं एक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में दिया है देयर इज 6 पोल, कितना पोल का मशीन है मेरा, 6 6 पोल का मशीन है, एंड ईच जनरेटर इज हैविंग कितना, 500 500 टन टन, 500 500 टन, ton. एंड इज कनेक्टेड इन 3 series, right, and whenever a field is excited by giving a magnetic flux of कितना, 0.2 0.02 जीरो Weber per pole, 0.02 Weber per pole, if the field circuit is open, क्या, फील्ड सर्किट को ओपन कर दिया कितने सेकंड के लिए, 0.02 सेकंड, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज 0.002, calculate the average voltage which produced across the terminal, कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, तो नंबर ऑफ टर्न कितना है हमारा, 6 इन 6 सर 6, एक पोल के लिए 500, तो हमारे पास 6 पोल है, तो कितना होगा 3000, 3000 3000, एक पोल के लिए फ्लक्स है कितना, पॉइंट
0.02. 02, ठीक है। और 6 पोल के लिए 6 into this। हाँ, फाइनल रेसिडुअल फ्लक्स मीन्स फाइनल फ्लक्स इज कितना, 6 into 0.002। तो दिस इज योर फाइनल। व्हाट इज द चेंज This side. initial, this is your initial minus this, so we got this is your change in flux. Now what is the EMF produced, कितने सेकंड के लिए, 0.02. 0.02. 0.02। so dt is your this, right? एंड व्हाट इज द वैल्यू। तुम लोग यहाँ पे मुझे पूछ सकते हो सर माइनस क्यों नहीं आया। फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल का हाँ, माइनस किया यहाँ है। पे हमने क्या है, इनिशियल माइनस फाइनल। अगर फाइनल माइनस इनिशियल करते तो ये माइनस आता, राइट, अंडरस्टूड। सो EMF, हाउ मच इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड, वी नो इट इज n into d5/dt। सो n आ गया हमारा, तो n है 3000। हाँ, एंड योर this is d5 is your this much and d is your this much, so you can say it is 16,200 voltage will be produced, right? Hmm. सर Simple। hmm इन टर्म अगर ये पैरेलल तो फिर क्या करते hmm हैं? एन टर्म कौन सा, अगर पैरेलल में हाँ, अगर फ्लक्स पैरेलल होता, अभी यस सीरीज है तो एक ही फ्लक्स है, पैरेलल होता तो दोनों फ्लक्स देखते, फाई वन कितना है, फाई टू कितना है, निकालना पड़ता। सेपरेट ये ये है टोटल फाइव। हम तुम लोग को पैरेलल सर्किट में बताया कि नहीं, ये टोटल फाइव इधर जाएगा और इधर जाएगा। ये 5/2, ये देखना पड़ेगा ये 5/1 कितना होगा। हाँ, और इसमें 5/2 कितना होगा वो देखना पड़ेगा, वो देखेंगे आगे प्रॉब्लम में। बहुत सारा प्रॉब्लम है, ये तो सिंपल प्रॉब्लम, देखो वैसी टाइप का प्रॉब्लम है तुम लोग को। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट। अभी तो हमने पढ़ दिया भाई, मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड क्या है, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, हमने उसको पढ़ लिया, ये एन है डी फाइव बाई डी टी पढ़। अब हम देखेंगे कि उसका डायरेक्शन कैसे आए, राइट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ईएमएफ आ गया तो क्या आएगा, देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट, right or not, when there will be voltage there will be flow of current, so we'll be seeing that what is the direction। so look at it यहाँ पे, okay, so the direction will which will give you, देखो यहाँ पे दो चीज होता है, right, so read it, the direction of the induced current may be found out, the direction of the induced current may be found out by which law, which law, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। Fleming's Fleming's लेफ्ट हैंड रूल right left hand hand rule. rule राइट हैंड रूल और all Lenger's law, इन तीनों लॉ को यूज करके हम करंट का डायरेक्शन निकालेंगे, समझ रहे हो। एंड इफ समबडी भी सकते हैं, लेफ्ट हैंड रूल कर सकते हैं या लेंजर्स लॉ लेंज कर सकते हैं। तो हम फ्लेमिंग्स रूल पहले जान लेंगे। लुक एट इट, द फ्लेमिंग्स रूल इज यूज्ड टू इंड्यूस ईएमएफ कटिंग, तो यहाँ पे देख लो। हाँ, ये रूल है, तो पहला रूल है ये। हाँ, क्या किया यहाँ पे, whenever this finger, which finger, थंब सर Thumb this finger. thumb, हाँ, thumb finger is the motion, ये वाला क्या है, कॉइल का रोटेशन, मोशन। देन this finger, which First, one, हाँ, the first first finger finger. with द your Magnetic, magnetic field, ये वाला, magnetic field. देखो ये वाला है फील्ड। हाँ, तो करंट क्या होगा, करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अंडरस्टूड, Yes, sir. समझ रहे हो। Yes, sir. यस सर। if your middle finger is the rotation of the coil and it rotates in a magnetic field which is your first finger, then what happen, currents will come, कैसे आएगा, हाँ, current will come like this,
inside to you. So this will give you, what is this is, क्या है ये जनरेटर है या मोटर है? ये जनरेटर है या मोटर है? The generator. 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 This is generator, right? This is your direction of the motion. Then this will be the direction of the induced EMF. Right? This is your generator. So look at it here. The right, if finding the direction of the induced EMF is known as your right hand rule. So right hand rule means right hand rule gives the, what is that? Direction of induced EMF and Induced EMF and current. करें। तो मैं पूछूंगा भाई जनरेटर के लिए कौन सा रूल हम अप्लाई करते हैं? Fleming's Right right hand. hand rule. हाँ, Fleming's right right hand. hand rule. Understood? So Fleming right hand rule is used for generation, and in this right hand rule, your thumb is going to showing the direction of the motion of the coil, and first finger will show the field. And whenever I will say a rotate motion, ये अब हम आ जाएंगे दो चीज को। ये हम कौन सा लॉ पढ़ा? ये पढ़ा हमने राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या है? लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल से दैट व्हेनेवर करंट, ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कहां पे जा रहा है? मिडिल फिंगर, राइट? व्हेनेवर ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड ने करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस ने कहां पे डालेंगे? Magnetic. हाँ, मैग्नेटिक फील्ड। देन इट Rotate. rotate, simple. So whenever a current carrying conductor means कहां पे? ठीक है, तो एक तुम लोग एक मोटर को लेके जनरेटर कर सकते हो, कर सकते हो कि Yes, sir. नहीं? तो करंट आएगा कि नहीं? और जन कॉइल को अगर करंट दोगे तो वो घूमेगा, Motor हो जाएगा. राइट और नॉट? राइट और नॉट? Yes, sir. सो राइट हैंड रूल फॉर जनरेशन ने ऐसे रखा है, ठीक है? क्या हुआ? ऐसे रखे तो व्हाट विल हैपन? फ्लक्स विल लिंक, फ्लक्स लिंक होगा कि नहीं? Yes, sir. फ्लक्स लिंक होगा, मगर फ्लक्स चेंज होगा कि No, sir. No, sir. नो? नो, फ्लक्स चेंज नहीं सर, होगा। बोलो। एक रोटेट हो रहा ना सर? रोटेट नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ एक पे सर, एक। कॉइल है, दूसरा कॉइल नहीं, ये कॉइल है, वहां पे हमने करंट दिया, फ्लक्स हो गया, हाँ, और यहाँ पे दूसरा कॉइल लेके आ गए, तो फ्लक्स लिंक तो हो रहा है मगर कट हो रहा है क्या? ये तो घूम ही नहीं रहा है, ठीक है ना? समझ रहे हो? तो यस सर। उसको देख के यहाँ पे दो टाइप का फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दो टाइप, एक है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा है क्या? स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट? डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड स्टैटिक इंड्यूस्ड, ठीक है? समझ रहे हो? तो डायनामिक मीन्स जो घूमता है, स्टैटिक मीन्स वो घूमता नहीं रुका हुआ है। है। सो इन द फर्स्ट केस देखो, इन द फर्स्ट केस द फील्ड इज स्टेशनरी, ए कंडक्टर कट्स अक्रॉस द इट, सो दिस इज ए डीसी जनरेटर। मीन्स वो क्या कह रहा है? फर्स्ट केस में ऐसे फ्लक्स हमने दे दिया, ठीक है, हमने करंट दे दिया, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ये घूम रहा है, ठीक है ना? और इसको हमने कहाँ पे घुमा रहे हैं, तो अभी हो जाएगा कि नहीं जनरेशन? Yes, sir. तो दिस इज नोन एज योर डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दिस इज योर डीसी जनरेटर, ठीक है? और हमने तुमको बोला था यहाँ पे वोल्टेज क्या देना है? कौन सा वोल्टेज देना है? डीसी डीसी सर। या DC. एसी? डीसी देना। हम तुम लोग को बोले थे भाई यहाँ पे डीसी वोल्टेज दोगे, हाँ, डीसी वोल्टेज देने से और यहाँ पे एक फ्लक्स आएगा तो
ये फ्लक्स मैग्नेट बन जाएगा और एक कॉइल को लेके यहाँ पे जब घुमाओगे तो पावर जनरेशन हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो यस इसको सर। हम घुमा रहे हैं यहाँ पे, तो ये कौन सा वाला हो गया, कौन सा वाला हो गया, डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल क्या है, डीसी जनरेटर, जनरेटर। डीसी जनरेटर, खत्म, रख दो। अब दूसरा चीज को हम आएंगे, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में कुछ घूमता है क्या, नो। नो, दो नो कॉइल है, सर। तुम लोग को दिखे थे लैब में, ट्रांसफार्मर घूम रहा था, नहीं, नो दो सर। कॉइल है, ये एक कॉइल, ये एक कॉइल, ठीक है ना, अंडरस्टूड, टू कॉइल। नाउ आई एम गोइंग टू गिव करंट, राइट। सो हाउ फ्लक्स लिंकेज हो रहा है कि नहीं, मगर फ्लक्स कट हो रहा है क्या, नो सर। नो सर। नहीं हो रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ होगा क्या, नो। नहीं होगा। तो हम क्या नहीं करेंगे होगा। यहाँ पे, हम लोग ट्रांसफार्मर को डीसी दिए थे या एसी दिए थे, एसी। एसी, एसी। एसी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं अभी, क्या कर रहे हैं, हम एसी। इंस्टेड ऑफ डीसी हम क्या दे रहे हैं, एसी। एसी। और एसी क्या हो रहा है, एसी इज फ्लक्चुएट। चेंज हो रहा फ्लक्चुएटिंग। है, तो ये जो चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिंक होगा कि नहीं, यहाँ पे चेंजेस होगा कि नहीं, यस सर। यस सर। तो लिंक हो जाएगा, ये में प्रोड्यूस होगा, यस सर। देन दैट इज नोन एज योर स्टैटिक ईएमएफ, अंडरस्टूड। तो यस सर। डिफरेंस क्या था इसमें और इसमें, एक में सर मोशन कर रहा है और एक में मोशन नहीं कर रहा। हाँ, एक में और मोशन एक कर रहा डीसी है, है एक में और एक मोशन नहीं एसी है। कर रहा है। इसमें मोशन कर रहा है, इसलिए हमने उसको डीसी दिया, तो मोशन में लिंक होके कट होके इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेशन हो गया। फिर दूसरे में मोशन नहीं है कि नहीं, तो इसीलिए हमने क्या किया, एसी दे दिया। एसी दिया। एसी दिया। एसी दे दी। तो दिस एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है इसका, सर ट्रांसफार्मर। 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 ट्रांसफार्मर में हम क्या देते हैं हर वक्त, एसी। 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 एसी देते हैं, अंडरस्टूड। देखो यहाँ यस पे, सर। राइट, यहाँ पे देखो, इन द सेकंड केस इनिशियली द कॉइन इज स्टेशनरी, सो बाय इंक्रीजिंग और चेंजिंग द सप्लाई मींस दैट इज ट्रांसफार्मर में हम करते हैं। तो ये कौन सा एग्जांपल है, ये हो गया स्टैटिक, यस स्टैटिकली सर। इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये हो गया डायनामिकली इंड्यूस्ड डायनामिकली ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ। तुम लोग को हम क्वेश्चन चाहिए थे, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, मींस क्या करो, क्या बोलोगे, आंसर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर। it is a transformer. And we are giving AC supply to the transformer. As it all the AC current is changing, the flux will be also changing. So the change of flux in the primary winding will link to the secondary winding, सेकेंड and there will be induced EMF in the secondary winding, and there will be a flow of करंट। फ्लो current. करंट। Current. That is known as your example of statically induced EMF. अब डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या, तुम लोग सर एक डीसी मैग्नेट जनरेटर। बना दिए, हाँ डीसी जनरेटर, एक मैग्नेट बना दिए, और मैग्नेट के लिए विच सप्लाई यू हैव गिवन, डीसी सर। डीसी सर। डीसी डीसी करंट। सप्लाई दे दिए, और एक कॉइल उसमें घुमाओ, ठीक है, whenever you are rotating the coil the flux cuts in the magnetic field and you are getting ईएमएफ। EMF, खत्म, अंडरस्टूड, यही यस यस सर। होता सर। है। तो कोई तुम लोग को पूछेगा भाई ट्रांसफार्मर है, एसी देंगे या डीसी देंगे, एसी सर। एसी एसी। देंगे। एसी देंगे, ठीक है ना। अगर ट्रांसफार्म डीसी देते हैं क्या होगा, यहाँ तो फ्लक्स तो होगा ही, मगर चेंज होगा ईएमएफ क्या, इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ नहीं। ईएमएफ चेंज, ईएमएफ नहीं आएगा, तो ये दूसरा सर्किट को वो करंट आएगा ही नहीं इंड्यूस होके। यस। तो क्या होगा, करंट यहाँ पे घूमता रहेगा, और कुछ देर बाद ये सर्किट को क्या करेगा, जला जला देगा, देगा। अंडरस्टूड। तो ये क्वेश्चन तुम लोग को बहुत लोग पूछेंगे कि व्हाई वी आर नॉट गिविंग डीसी सप्लाई टू ए ट्रांसफार्मर, right? यस So सर। your answer should be, if you will give DC supply to the transformer, there will be no change in flux, so flux will not link to the secondary winding, so there will be no produced of EMF. After some time there is a saturation, right?
मैग्नेटिक, ये तो मैग्नेटिक बनाता रहेगा, तो Yes. आफ्टर द सर्टेन टाइम देयर विल बी मैग्नेटिक सैचुरेशन, ड्यू टू दैट a circulating current is flowing in this primary circuit only, and that will क्या करेगा वो? बर्न चलो। जला That देगा। जल will जा। burn the primary circuit. Understood? यस Clear? सर। ठीक यस है। सर। यहाँ पे मैं एसी दूंगा तो क्या होगा? सर फिर ईएमएफ क्या होगा? ईएमएफ सर नहीं मिलेगा। क्यों? लाइट कट जाएगा तो सर ठीक से होगा तो करंट नहीं आएगा। क्यों यहाँ पे हम ये तो देखो घूम रहा है, हाँ, यहाँ पे देंगे तो ये भी घूमेगा, ठीक है ना? तो एसी, प्राइमरी कॉइल मैग्नेट नहीं होगा। हाँ, कभी मैग्नेट होगा, कभी यहाँ पे होगा नो तो सर। मैग्नेट नहीं होगा, यहाँ पे यस। होगा तो मैग्नेट ज्यादा होगा, यहाँ पे होगा तो नहीं होगा, यहाँ पे होगा तो नेगेटिव होगा। इसीलिए हम जो डीसी को फील्ड देते हैं वो क्या देते हैं? ये जनरेटर में डीसी। क्यों? फॉर यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड। यस, फॉर यूनिफॉर्म, यही है और कुछ नहीं। यही टेक्नोलॉजी यूज करके वो जनरेट कर रहे हैं, यही यूज करके वो ट्रांसफॉर्मर बना रहे हैं, ठीक है? ओके, तो इसी को हम कहते हैं डायनेमिक और उसको कहते हैं स्टैटिक। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, ये यस सर। दोनों चीज है। तो अब हम आएंगे वहां पे, जो स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो दो तरह का होता है, ठीक है? स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ दो तरह का होता है, एंड दिस इज divided into two. It is known as your mutual inductance induced EMF and static induced EMF. Mutual inductance and self-induced EMF. क्या है वो दोनों? किस चीज का डिवीजन है? स्टैटिस्टिकल हाँ, इंडस्ट्री। हाँ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ मींस यहाँ पे कॉइल घूमता है क्या, घूमता नहीं है? एक घूमता है एक नहीं घूमता है सर। कोई घूमता नहीं है, नो रोटेशन। नो नो रोटेशन। रोटेशन। ट्रांसफार्मर यस में सर। कॉइल घूमता है क्या? नो सर। ये वाला है, नो सर। उसमें तुम लोग एसी दे दिए, समझ रहे हो ना? अब एसी दे दिए मीन्स क्या हुआ? एसी अंदर वो बाय नेचर ऐसी ऐसी है, और ये वाला कॉइल है, तो कौन कॉइल घूम रहा है क्या? कोई भी नहीं नो घूम सर। रहा है, कोई नो भी सर। नहीं, राइट? So that's why it is the induced EMF known as your statically induced EMF. And statically induced EMF is of two type. दो तरह का होता है। हाँ, statically induced EMF is of two type. What are they? देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखो, ये पहले तुम लोग को म्यूचुअल बता, सेल्फ बताएंगे। मेरा ये कॉइल है, ठीक है? हाँ, दूसरा यहाँ पे कॉइल है, हम यहाँ पे करंट दिए, हाँ, ठीक है? ड्यू टू दिस what happened, there is an whenever a current flowing through that, हाँ, अब तुम लोग को क्या बोले थे? look at it here, यहाँ पे क्या दिया हमने? एक करंट दे दिया तो क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। So look at it, the EMF induced, due to change of its own flux linked to it means क्या होगा? ये मेरा कॉइल है, प्राइमरी कॉइल, देख रहे हो? और यहाँ पे मैंने वोल्टेज दिया तो यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, यहाँ पे फ्लक्स हुआ, एंड द फ्लक्स विच इज coming here, it is linked with this coil and it will produce a EMF. यहाँ पे एक EMF आएगा, it is known as your E. समझ रहे हो? और once again I am going to tell you, look at it. मेरा ये एक कॉइल है यहाँ पे, ठीक है ना? एक कॉइल है, और कॉइल में हमने क्या किया? एक वोल्टेज हमने, I have given a voltage of V, right? Whenever there is a voltage of V, there will be a current of, tell आई। me, I. When the current is flowing, there will be a current of I, and due to I, there will be a
flux. What is that flux? Phi. Hi. Phi. Whenever there is a flux, that is a change in flux, will give you a EMF. EMF. EMF E. Understood? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? हमने वोल्टेज Yes, sir. दिया, वोल्टेज से करंट फ्लो हुआ, करंट से फ्लक्स हुआ, फ्लक्स लिंकेज होके एंड ईएमएफ मिला, और उस ईएमएफ को हम क्या बोलेंगे? वो ईएमएफ को बोलेंगे क्या? एक ही कॉइल में हो रहा है, सेल्फ Self-induced उसको हम क्या EMF. कहेंगे? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. अंडरस्टूड? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. राइट? लुक एट इट दिस. यहाँ पे देखो, this induced EMF in a coil due to change of flux its own flux linked to it. ठीक है? हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. एंड इसको कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. और उसका डायरेक्शन कैसे होगा, कोई बताएगा? देखो, मैं यहाँ पे करंट दिया, ठीक है? हाँ, ये कॉइल है, तो दिस इज योर करंट. वोल्टेज कैसे आएगा? एनीवन? Opposite. वोल्टेज कैसे आएगा? लैगिंग और लीडिंग? वोल्टेज इन ए कॉइल which lags? भूल गए हो? Current lags. Current lags. करंट लैग्स. तो वोल्टेज कैसे आएगा? ऊपर. ऊपर. वेरी गुड. वोल्टेज ऊपर आया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? V. तो वोल्टेज दिया नहीं, तो इन ए कॉइल करंट लैग्स मींस करंट लैग हो गया. अब ईएमएफ कैसे आएगा? अभी तो हमने बात किया कौन सा लॉ? लेंज लॉ. यस सर, तो इट अपोजेस द एवरी कॉज. तो वोल्ट ई कैसे आएगा? वोल्टेज पूरा नीचे. यस, नीचे. वेरी गुड. दिस इज योर ई. अंडरस्टूड? हाँ, ठीक है ना? तो हम Yes, क्या sir. बताएंगे? whenever there is a voltage given in a coil, there will be a what? Current flowing in the coil, and that is going to give you a flux of phi, and that flux of phi will produce a EMF of E, and that EMF is directly opposed the Voltage. वोल्टेज. क्यों? क्योंकि लेंजस लॉ वो बोल रहा है कि भाई, वो जिसने उसको पैदा किया उसको अपोज करेगा. पैदा उसको कौन किया है? Voltage. वोल्टेज. Voltage. तो उसको अपोज कर रहा है. खत्म. एंड दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. Self-induced. दिस इज नोन एज योर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. लुक एट सर. हाँ. सर ट्रांसफार्मर में इंड्यूस एक हाँ, ट्रांसफार्मर में घूमेगा नहीं, वो घूमने से कैसे होगा? उसका पर्पज अलग है. सर मेरा पूछना है ना कि ट्रांसफार्मर में सर कॉइल क्यों नहीं होता? क्या? मैं सुना ही नहीं दे रहा. कि ट्रांसफार्मर तो कॉइल हाँ. क्यों होता है, एक क्यों नहीं होता सर? वही तो, उसका पर्पस क्या है ट्रांसफार्मर का, बताएंगे हम. हाँ, क्यों होता है? क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर क्यों यूज करते हैं, पहले बताओ. सर इलेक्ट्रिक के लिए. किस चीज के लिए? ये कम वोल्टेज, तो क्या करें? तो कम कर. हाँ, हम दूसरा कॉइल में क्या करते हैं? नंबर ऑफ टर्न को घटा देते हैं, तो लिंक कम होगा. मान लो यहाँ पे Yes, sir. लिंक है 50, नंबर ऑफ टर्न 50 है. मैं क्या करूंगा? कर लूंगा टर्न, तो उसी हिसाब से क्या होगा? लिंक क्या होगा? घट जाएगा कि नहीं? घट जाएगा. Yes, sir. क्या होगा? वोल्टेज भी. वोल्टेज डिक्रीज करने के लिए दो हाँ, दो कॉइल, दूसरा कॉइल. अब इस तरफ से मैं दूंगा 5 वोल्ट, तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ कॉइल यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो लिंक हो जाएगा, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? हाई हो ज्यादा जाएगा. हो जाएगा. हाई हो जाएगा. इसका Yes, sir. पर्पज है ये कॉइल में वोल्टेज को कम करना, ज्यादा करने के लिए हम यूज करते हैं, इसीलिए दो कॉइल है. तो अब हमने समझ लिया व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ.
ठीक है, तो दिस इज नोन एज योर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ में दिस इज ऑल्सो नोन एज योर सेल्फ क्या इंडक्टेंस। यहाँ पे मैंने लिंक किया है, देखो सर अटेंडेंस first class of a coil, it produces current of I, then it produces a flux of I. The flux linkage with the coil will produce a EMF of तुम लोग सो गए हो? नो सर। नया मूवी का डायलॉग सुने हो क्या? हैं? जो पुष्पा कौन सा सर? हाँ, उसमें वो डायलॉग को हमने थोड़ा चेंज कर दिया, बोलेगा सुनेगा सुनेगा नहीं, नहीं। यस नहीं सर। तो बोलेगा नहीं, हैं? नहीं तो लिखेगा नहीं। आज सुबह सुबह हमने घर में हमारे बेटे को बोला, सुबह उसको उठाया, वो उठा नहीं, मैं बोला क्या है, हैं? ठंड हो रहा है थोड़ा, क्यों उठे? यस वो सर, मस्त बिहार में बहुत ज्यादा डायलॉग ठंड है। भी, अब डायलॉग भी अच्छा ऑनलाइन टाइम में आ गया है, हैं? उसको तो बच्चे लोग आज तक नहीं बनाए, नहीं तो कोई मीम बना के छोड़ देता। वो मास्टर अटेंडेंस देगा तो वहां पे वो आ जाएगा, बोलेगा अटेंडेंस डालेगा नहीं हम, ठीक है। तो ऐसा है, यस सर, तो न्यूज़ बनाते हैं। हाँ, तो हम जो पूछेगा कैसे बताओगे तुम लोग, ऐसे whenever there is a voltage of V will produce a current of I, will produce a flux of phi, there will be induced EMF E in the same coil, then that is known as your self inductance। और उसका फिगर कोई पूछेगा तो हम भाई वोल्टेज दे रहे हैं V और उसका करंट लैग हो रहा है एट एन एंगल फाई एंड वुड प्रोड्यूस हो रहा है फ्लक्स फाई एंड दैट इज विल प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ E। और जो E कैसे आएगा, डायरेक्ट अपोजिशन ऑफ भी and right, this is known as your self induced EMF, understood? ठीक है, यस कुछ नहीं है, एक बार यस समझ सर। लो कैसा हो रहा है तो उसको याद रखने का जरूरत ही नहीं है, राइट? दिस इज नोन एज योर सेल्फ इंडक्टेंस। और यहाँ पे दूसरा एक आएगा म्यूचुअल, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस थोड़ा हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखो मेरा एक कॉइल है यहाँ पे और दूसरा कॉइल है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इस कॉइल में वोल्टेज दिया तो इस कॉइल में करंट एक आया फाई आई एंड उस कॉइल में एक फ्लक्स आई वन आ गया करंट और उसमें एक फ्लक्स हो गया फाई वन, ठीक है ना। और फाई वन किस में लगा, दूसरा कॉइल नजदीक है वो कॉइल, तो वहां पे लिंक हो गया, तो लिंक होके यहाँ पे एक फ्लक्स कितना हुआ फाई टू, और 5/2 फ्लक्स फाई टू हुआ तो एक ईएमएफ आएगा क्या ई टू, हाँ एक ईएमएफ ई टू आएगा तो उससे करंट फ्लो होगा आई टू, हाँ एक करंट आ गया तो वहां पे एक वोल्टेज होगा। वोल्टेज V2। तुम सर लोग गोटे क्या दिए डाउट यहाँ, थिला तो सर जो आपन जो असाइनमेंट देखले सेतिरे हमर जो क्वेश्चन आंसर करछु तीनटा पेज जाईछि ताकू केमिति अपलोड करबी। PDF वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड आंसर। उसमें से जाकर मिल हाँ, जाएगा। सर वो आंसर क्या है? किस चीज का क्वेश्चन का, सर क्वेश्चन का, हाँ सर। अरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, जो कैम स्कैनर है उसमें स्कैन कर लो और वो पे अपलोड है उसको अपलोड कर लो, खत्म। ऐसे इंजीनियर बनोगे तुम लोग, अरे दुनिया कहाँ पे चला गया है? डाउट नॉट सर। चला गया, ग्रेविटी जा गया है, ठीक है। अभी 1 मिनट में, अभी टाइम हो गया है, तुम लोग अटेंडेंस डाल देते हैं, बट 1 मिनट में मैं खत्म करता हूँ। देखो हमने यहाँ पे क्या दिया, वोल्टेज V1 दिया कि नहीं, यस सर। तो वोल्टेज V1 से करंट क्या आया I1, I1 I1 से फ्लक्स क्या आया I1, I1 ठीक है। I1 फ्लक्स दूसरा कॉइल में लिंक हुआ, क्या हुआ I2 हुआ, वो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया E2 किया, E2 प्रोड्यूस हुआ तो करंट फ्लो हुआ I2, I2 से वोल्टेज क्या मिला V2। V2 ठीक है। तो इसको हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल क्या है, रिपब्लिक डे। इंडिपेंडेंस, सॉरी सर, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे। रिपब्लिक What डे, a miss.
हाँ नहीं सॉरी ठीक बोले। है ठीक है। तो तुम लोग क्या करना, खा पी के सो जाना। ठीक है। ठीक है। हाँ तो थैंक यू, मैं अभी अटेंडेंस डाल दे रहा हूँ। जस्ट ए मिनट। थैंक यू सर। हम उसको वेबसाइट में जाएंगे, निकालेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज सर कल क्लास होगा क्या? कल छुट्टी है। हाँ कल देश का सारे हिंदू कार्य में जो स्थगित हाँ रहेंगे। रिपब्लिक डे में हम वो देश के लिए समर्पित कर देंगे क्लास को। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, मैं नहीं किया हूँ, कॉलेज किया है, मुझे थैंक यू बोलने से क्या हो। चलो फिर 10 बज गया। 10 बज गया क्या? अब हो गया ये, बच्चा हुआ है बचा हुआ है। ठीक है। सर। कॉलेज खुलने का अब सर हम कब तक ये चांस है? खुल जाएगा। अभी कोरोना का जल्द। चांसेस कम हो गया है ना। यस हाँ सर, तो जल्दी खुल खुलेगा जाएगा। सर। जल्दी खुलेगा तो जल्दी मिलेंगे हम। ठीक है, तो हम यस सर। अटेंडेंस डाल दे रहे हैं। सुप्रभात मंडल, अमन, उज्जवल टोपो, प्रेजेंट सर। हसन राजा, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। अरुण अरुण कुमार सोरेन प्रेजेंट सर। एंड दीपक कुमार। अभिनंदन, वन वन यस सर। टू प्रेजेंट सर। थ्री यस सर। प्रेजेंट सर। फोर फाइव यस सर। सिक्स सेवन यस सर। एट प्रेजेंट सर। नाइन यस सर। 10 11 12 यस सर। 13 14 यस सर। 15 यस सर। 16 17 18